Hello everyone and welcome to Ira Tutorials. I'm Aarti Naik and today I'm going to teach you class 5 subject English topic number 13, The Adventures of Gulliver, Things to Do. Already this lesson is taught in my previous video. You can see it with the link which is given in the description box. So if you remain to watch that video for explanation of this lesson, you can see first that video, link is given in description box, and then only you go for things to do, that means question and answers. So let us start. Question number 1. How was Gulliver tied down on the seashore? तो सी शोर पे गुलिवर को कैसे बांध के रखा था? Gulliver was tied down on the seashore in such a way that his arms and feet were held down to the ground with strings. His hair, which was long, was held down in the same way. Thousands of strings had been passed across his body so that he could not move any part of his body but could only lie there on his back looking up at the sky. तो गुलिवर को समुद्र के किनारे इस तरह बांध के रखा था, छोटी छोटी डोरियों से बांध के रखा था, उसके बाल भी बांध के रखे थे और उसको इस तरह जकड़ के रखा था कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था, वो सिर्फ लेटे लेटे आकाश देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था. What did the important looking man tell Gulliver? The important looking man told Gulliver that they would not harm him if he does as they told. मतलब जैसे वो लोग बताएंगे वैसे ही अगर गुलिवर ने सुना तो वो उसे कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचाएंगे. He too replied with gesture that he would remain quiet, और उसने भी जवाब दिया एक्शन करके कि वो भी कुछ नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा. How was Gulliver taken to the city? मतलब गुलिवर को सिटी में कैसे लेके गए? A great cart was made by joining many carts. मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ मिला के एक बहुत बड़ी गाड़ी बनाई गई. 900 men worked for 3 hours to put Gulliver onto the cart, which was drawn by 1500 of King's finest horses. The city was just half a mile away, but the journey took almost a full day. मतलब वो बहुत ही कम डिस्टेंस था, लेकिन वो कार्ट पर जाने की वजह से पूरा दिन उसमें चला गया. क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब गुलिवर्स होम इन लिलीपुट. तो गुलिवर को कैसा कर दिया गया था? An old church was the largest building in the whole country. मतलब उनके पूरे देश में सिर्फ एक ही बिल्डिंग बड़ी थी. For certain reason, it had not been used as a church for many years. It had now been made ready for Gulliver to use as his house. मतलब वो चर्च ही अब गुलिवर का घर बन गया. The great door on the north was 4 feet high and 2 feet wide, so he could go into it by down on his hand. One of his feet was set in a large ring on the end of many strong strings so that he could not get away, but could only walk some distance outside his door. The country outside looked like a garden. मतलब वो कुछ उसका एक पैर बांध के रखा गया था ताकि वो कहीं भाग न जाए, और इस तरह उसे उस घर में जो हमारे नॉर्मल घर से भी छोटा था उस घर में उसको रहने को बोला गया. डिस्क्राइब गुलिवर्स वॉक अराउंड द सिटी. मतलब जब गुलिवर शहर में घूमने निकला तब क्या था, तब कैसा क्या नज़ारा था? ड्यूरिंग गुलिवर्स वॉक अराउंड द सिटी, ऑर्डर वर गिवन टू ऑल द पीपल टू रिमेन इन देयर हाउसेस. मतलब राजा ने पहले ही सबको बताया था कि घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये लिलीपुटियन साइज में बहुत ही छोटे थे, और अगर गुलिवर वहाँ रास्ते से चलते चलते कोई भी लिलीपुटियन उसके पाँव के नीचे आ गया तो मर सकता था. तो कुछ एक्सीडेंट होने
से तो अच्छा है कि राजा ने सबको ऑर्डर दे दी कि आप सब घर पर ही बैठो। He then stepped over the wall and went very carefully along two large streets. All the windows were full of faces looking out at him, and the large numbers of people were standing on the tops of the houses. मतलब लोग घर की छत पर जाकर गुलिवर को देखने के लिए खड़े हो गए और सब लोग अपने घरों की खिड़कियों में गुलिवर को देखने के लिए खड़े थे। The king's house was just at the place where two great streets met. There was a beautiful garden on all sides of it. Lying down in the garden, I put my eyes to the window. मतलब गुलिवर ने खिड़की में से देखा और देखा कि अंदर से रूम बहुत ही खूबसूरत थी। Now these are the activities you are supposed to do. मतलब ये आपको करनी है। Tell any one of the stories orally imagining you are Gulliver. मतलब आपको कोई भी एक कथा बतानी है, कहानी बनानी है जिसमें आपको समझना है कि आप खुद गुलिवर है। सेकेंड, राइट एनी वन ऑफ दिस स्टोरीज नॉट एज टोल्ड बाय गुलिवर बट बाय सम अदर पीपल। मतलब अगर आपने ये स्टोरी देखी तो इसमें गुलिवर बोल रहा है, तो आपने ऐसी स्टोरी लिखनी है कि जिसमें गुलिवर नहीं बोल रहा है, आपको कोई तीसरा आदमी बता रहा है कि कैसे हुआ। जैसे कि कोई लिलीपुटियन बता रहा है कि हमारे यहाँ गुलिवर आया जो बहुत बड़ा था और जिसको हमने बांध के रखा था, फिर उसने बोला कि वो कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, तो हमने उसको एक घर बना के दिया। फिर वो शहर में घूमने निकला तो हम सब घर के अंदर रहे, हम सब खिड़की से, घरों की छत से गुलिवर को देखते थे। हमने इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। इस तरह से आप अपने मन से बना सकते हैं। इमेजिन दैट यू आर इन द लैंड ऑफ टाइनी पीपल लाइक लिलीपुट। मतलब ऐसी कल्पना करनी है कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सब छोटे छोटे, जैसे कि लिलीपुट में जब लोग बहुत ही छोटे थे। राइट अबाउट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू माइट सी देयर इंक्लूडिंग एनिमल्स, हाउसेज, प्लांट्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। फाइंड एन इंटरेस्टिंग नेम फॉर दिस लैंड। ओके, तो ये लिलीपुट था। अगर ऐसा ही कोई अगर दूसरी दुनिया है तो हम उसका नाम मिनीपुट रख देंगे। ओके, सो इट इज़ अप टू यू, यू कैन गिव एनी नेम। इफ यू वर टू ग्रो वेरी टाइनी लाइक अ लिलीपुटियन, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू। मतलब अगर आप लिलीपुट जैसे छोटे हो तो आपको कौन सी चीज़ें करना बहुत पसंद आएगी, क्या करना पसंद आएगा। तो आपको ऐसी 3 चीज़ें बतानी है जो आपको पसंद आएगी। ओके, कुछ किसी को ऐसी चीज़ें फिर तो आप अपने मम्मी के पर्स में भी घूमने जा सकते हो। फिर आपको किसी को कैरी करने में तकलीफ़ नहीं होगी, तो कोई भी आपको कहीं भी लेके जा सकता है। ओके, सो ऐसी कोई भी 3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी है, बतानी है। Now language study. Read the highlighted words, they are adverbs. I was pulling hard. They ran away. Later I was taken to the city. I went very carefully. They were greatly pleased. Okay, तो ये जो भी येलो कलर में वर्ड्स है ना वो सारे एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो होता है वो हमें वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है। तो फाइंड द सुटेबल एडवर्ब्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। मतलब अभी यहाँ पे कुछ वर्ब दिए गए हैं, हमने उसके लिए एडवर्ब्स ढूंढने हैं। जैसे कि वॉक, तो वॉक स्लोली, वॉक केयरफुली, वॉक पेशेंटली। स्पीक, स्पीक पोलाइटली, स्पीक क्लियरली, स्पीक सॉफ्टली। पुश, पुश स्लोली, पुश केयरफुली, पुश पेशेंटली। देन स्टडी, स्टडी सिंसियरली, स्टडी ऑनेस्टली। मतलब ये जो वर्ब है वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब। स्टडी प्रॉपरली, स्टडी ऑनेस्टली। अब सिंग, सिंग सॉफ्टली, सिंग मेलोडियसली, सिंग स्वीटली। वर्क, वर्क ऑनेस्टली, हार्डली एंड प्रॉपरली। नाउ फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स। हार्ड, सॉफ्ट, क्विकली, स्लोली, fast, slow, tidily, dirtily, unknowingly, knowingly, early, late, often, rarely, never, always,
honest, dishonestly, shameful, respectful. So these are the adverbs and opposite of the adverbs. तो आज हमने जो कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस किए, आप मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे. I hope that there is no query. If you have any, please write down in the comment box and don't forget to subscribe my channel. Thank you.